વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કેવડિયા પહોંચ્યા। લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની આજે જન્મજયંતિ અને દિવાળીનો દિવસ, આ બંને મહત્વના દિવસ અને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાતની મુલાકાતે છે, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ભવ્ય ઉજવણી આજના દિવસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે સરદાર સાહેબને પુષ્પાંજલિ તેઓ અર્પણ કરી રહ્યા છે। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને નમન અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે સરદાર સાહેબની પ્રતિમાને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું આ નમન। કેવડિયામાં એકતા પરેડમાં પીએમ મોદીની હાજરી, ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી થોડીવારમાં અહીંયા જનસભાને પણ સંબોધશે। આજનો દિવસ ખૂબ મહત્વનો। કેવડિયામાં એકતા પરેડ, લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની આજે જન્મજયંતિ અને સાથે દિવાળીનો પણ આ એક ખૂબ પવિત્ર અવસર। ત્યારે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા। રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ભવ્ય ઉજવણી તેમના દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। તેમણે તેમના હસ્તે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને નમન કર્યા, પુષ્પાંજલિ તેમણે અર્પણ કરી। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે તેઓ પહોંચ્યા અને સરદાર સાહેબની પ્રતિમાને સીએમનું નમન। કેવડિયામાં એકતા પરેડમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાજરી આપી। તેમની આ હાજરી અનેક વિકાસના કાર્યોની તેમના દ્વારા અહીંયા ભેટ આપવામાં આવી છે અને આ સાથે આજનો દિવસ ખૂબ વધારે મહત્વનો। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી। 31 ઓક્ટોબર એટલે કે આજનો દિવસ અને આજના દિવસે દેશભરમાં એક અનોખો સંયોગ જળવાશે। દિવાળીના તેજસ્વી તહેવારની સાથે દેશના લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિનો આજે ઉત્સવ પણ। ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2 દિવસીય ગુજરાતની મુલાકાતે, તેમને કેવડિયા ખાતે આગમન થયું અને દિવાળી પહેલા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીથી 284 કરોડથી વધારેના પ્રોજેક્ટનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદનો આજનો દિવસ, આજે તેઓ હમણાં થોડી જ વારમાં સંબોધન પણ કરશે, જેમાં સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ, ટ્રાફિક સર્કલ, સ્માર્ટ બસનું પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લોકાર્પણ કર્યું છે। ઉપરાંત બોન્સાઈ ગાર્ડન, સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનું પણ ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું। સરદાર સરોવર ડેમ સેન્ટર પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ થયો। વડાપ્રધાન મોદી આજે એકતાનગરમાં જ રાત્રિ રોકાણ કરશે અને પુષ્પાંજલિ તેમણે અહીંયા અત્યારે પહોંચ્યા, અર્પણ કરી। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે એકતા પરેડ યોજાનાર છે અને તેવા તેમના દ્વારા હાજરી આપવામાં, આ સાથે અનેક વિકાસની પરિયોજનાનો તેમના દ્વારા શિલાન્યાસ પણ કરવામાં આવશે। આપ જોઈ રહ્યા છો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સરદારને નમન કરતા પુષ્પાંજલિ તેમના દ્વારા અર્પણ કરવામાં આવી। અહીંયા જનસભાને પણ સંબોધશે। રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ 2024, જેમાં દેશના 16 રાજ્યોના 530 કલાકારો કે જે આજના દિવસે પોતાની કલાનું પ્રદર્શન કરશે। સુરક્ષા દળો દ્વારા અલગ અલગ કાર્યક્રમનું આજે આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કાર્યક્રમ, અલગ અલગ તેમના દ્વારા કાર્યક્રમ, તમસોમાં જ્યોતિર્ગમયની થીમ પર નૃત્ય અને સંગીતના કાર્યક્રમો પણ રાખવામાં આવ્યા છે। 280 કરોડના વિવિધ વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસ। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની આજે ઉજવણી, જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ તેમની સાથે આ ઉજવણી કરવામાં આવશે। ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે અને કેવડિયામાં છે, જ્યાં વિકાસની પરિયોજનાનું ઉદ્ઘાટન તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યું, શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદનો આજનો મહત્વનો દિવસ 31 ઓક્ટોબર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીમાં ભાગ લઈ સરદાર પટેલને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી। ત્યારે વિવિધ વિકાસના કામો અને સરદાર સાહેબની પ્રતિમાને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું નમન। વડાપ્રધાન મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે છે અને ગુજરાતના પ્રવાસે જ્યારે પણ હોય છે ત્યારે અનેક વિવિધ વિકાસ કામોનું તેમના દ્વારા લોકાર્પણ કરવામાં આવે છે, પ્રજાને ભેટ આપવામાં આવે છે। લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ અને જન્મજયંતિ નિમિત્તે તેઓ અહીંયા કેવડિયા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે આવ્યા છે। વતનમાં વડાપ્રધાન છે, અગાઉ પણ તેમનો પ્રવાસ, ત્યારે પણ કરોડોના વિકાસ કાર્યોની તેમના દ્વારા ભેટ આપવામાં આવી। ફરી એકવાર તેઓ અહીંયા પધાર્યા છે। 30-31 2 દિવસીય તેમનો આ ગુજરાત પ્રવાસ અને 2 દિવસમાં તેમના દ્વારા અનેક વિકાસ કાર્યોની ભેટ આપવામાં આવી। ત્યારે આજે દિવાળી પહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આ સોગાત અને આજનો દિવસ કે જ્યાં 284 કરોડથી વધારેના વિકાસ કામોની તેમના દ્વારા ભેટ આપવામાં આવી છે। ત્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કે જેમની જન્મજયંતિ છે અને જન્મજયંતિ નિમિત્તે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ભવ્ય ઉજવણી પણ કરવામાં આવી રહી છે।
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે સાહેબને પુષ્પાંજલિ, વલ્લભભાઈ પટેલને નમન કરવામાં તેમણે કર્યું અને સાથે પુષ્પાંજલિ અર્પણ કર્યા સાથે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાને તેમણે નમન પણ કર્યું. રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ ભારતમાં 31 ઓક્ટોબરના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિનો આ મહત્વનો દિવસ અને જેના ઉપલક્ષ્યમાં આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉપસ્થિત, ત્યારે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ કે જે મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. ભારતના પ્રથમ ગૃહમંત્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ નિમિત્તે દર વર્ષે 31 ઓક્ટોબરે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની આ જન્મજયંતિ જેઓ ભારતના લોખંડી પુરુષ તરીકે ઓળખાય છે અને આ દિવસે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરે છે. આજનો આ મહત્વનો દિવસ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કાફલા સાથે ત્યાં પહોંચ્યા, તેમના દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી, પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી, નમન પણ તેમણે કર્યું. આજ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેમણે ભારતની આઝાદીની લડત અને દેશના એકીકરણમાં સંઘર્ષમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ દિવસ દેશભરની વિવિધ સંસ્કૃતિઓ, ભાષાઓ, પરંપરાઓ વચ્ચે એકતા, અખંડિતતા અને એકતાના મહત્વ પર ભાર મૂકે છે. પ્રાદેશિક, ભાષાકીય અને ધાર્મિક મતભેદોથી પર રહી રાષ્ટ્રીય ઓળખની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપવાની સાથે ભારતની સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવી રાખવાની જરૂરિયાત પર આ દિવસ ભાર મૂકે છે. રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ, ત્યારે આ દિવસની શ્રદ્ધાંજલિ આપવા સાથે શરૂઆત કરવામાં આવે છે. પ્રથમ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જ કરવામાં આવ્યું હતું. 2014માં તેમણે નવી દિલ્હીમાં રન ફોર યુનિટી કાર્યક્રમને લીલી ઝંડી બનાવી હતી અને ત્યારબાદ 2024નો આજનો દિવસ ફરી એકવાર તેઓ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે પધાર્યા છે અને તેમના દ્વારા આજે પણ એક મહત્વનો કાર્યક્રમ છે, એકતા પરેડ, કે જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાજરી આપશે. કેટલાય કરતબો અહીંયા જવાનો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવશે, ટીમ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવશે. ત્યારે આજનો આ મહત્વનો દિવસ અને આ દિવસે લોકો સરદાર પટેલના મહાન કાર્યોને યાદ કરી રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી કરે છે. દેશના વિવિધ ભાગોમાં વિવિધ કાર્યક્રમ, વેબિનાર અને સેમિનારનું પણ આજના દિવસે આયોજન કરવામાં આવે છે. ત્યારે ખૂબ વધારે મહત્વ છે. भारत भूमि की साहस व शौर्य के सिरमौर मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी राजधानी यानी रायगढ़ किले की अभेद प्राचीर की प्रतिकृति यहाँ बनाई गई है, जो इस राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों को मातृभूमि के प्रति समर्पण का संदेश दे रही है. इस अजय दुर्ग की पृष्ठभूमि में भारतीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन व अभिनंदन किया. राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में 54 राज्य पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस बलों के ये ध्वज, जो हमारे त्रिरंगे की सच्ची ताकत है, पूज्य सरदार के अखंड भारत के विचार एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के संगठित भारत के जज्बे को हिंदुस्तान के सीने में जिंदा रखने हेतु संकल्पबद्ध है. 54 ध्वजवाहकों में लहराते हुए ये प्रत्येक ध्वज अपने आप में कई वीर गाथाओं को समेटे हुए एक भारत के लिए कटिबद्ध होने का संदेश दे रहे हैं. इनमें से कई ध्वजों को निशान का सम्मान भी प्राप्त है.
और अब मां भारती की जाबाज बेटियां, शक्ति का सच्चा स्वरूप राष्ट्रीय एकता परेड में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली का बड़े ही गौरव से नेतृत्व कर रही है। इस टोली की कमान संभाली है सीमा सुरक्षा बल की युवा अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर मृदुला ने। राष्ट्रध्वज के आगमन पर हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। आइए खड़े हो जाएं। संस्कृति, साहसिकता, अत्याधुनिकता एवं विकासशीलता से विश्व में हमारा भारत महाशक्ति की तरह उभर रहा है और इस सशक्त भारत की पहचान है एकता एवं अखंडता। इस एकता को मजबूत बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य को चरितार्थ करते हुए अखंड भारत के प्रेरक पूज्य सरदार की जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्धार किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर यहाँ उपस्थित सभी के साथ पूरे भारतवर्ष को एकता की शपथ दिलवाने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय अनुरोध करते हैं। दर्शक दीर्घा में उपस्थित हम सभी शपथ की मुद्रा में खड़े होकर दाहिना हाथ आगे करके शपथ को दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से
संकल्प करता हूं आइए फिर खड़े हो जाइए। समय भारतीय पुलिस बलों की गौरव गाथा हवाओं को सुनाते भारतीय पुलिस बलों के ध्वज अब राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के पहले दस्ते के रूप में अपना स्थान लेने जा रहे हैं। भारतीय पुलिस बलों ने हमेशा ही देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय पुलिस बलों के अब तक 36,000 से भी अधिक जवानों ने देश की राह में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। इनमें से विगत वर्ष 216 पुलिस कार्मिकों ने देश की एकता और अखंडता की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए बलिदान और शहादत की नई इबारत लिखी है। इन ध्वजों के प्रति हर पुलिस बल की प्रतिबद्धता उन्हें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। बलिदान, शौर्य और पराक्रम की कहानी कहते ये भारतीय पुलिस बलों के ध्वज। आज की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं 2021 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी एएसपी वलय वैद्य, आईपीएस गुजरात पुलिस, वर्तमान में अमरेली के सावरकुंडला में पदस्थ और इस समय राष्ट्रीय एकता दिवस की कमान संभालते हुए। और आज की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का शुभारंभ बैंड की जोश भरी धुन पर गर्व से आगे बढ़ते भारतीय पुलिस बल के जवान
राष्ट्रीय एकता दिवस के आयोजन के मद्देनजर भारतवर्ष के समस्त राज्यों को 5 जोन में रखा गया है। इस वर्ष प्रत्येक जोन से 2-2 राज्यों के पुलिस बल इस परेड में शामिल हैं, जिससे यह परेड अब तक की सबसे बड़ी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड बन गई है, जिनमें 10 राज्य पुलिस बल और 4 केंद्रीय पुलिस बलों सहित एनसीसी कैडेट्स शामिल हैं। भारतीय पुलिस बलों के 54 ध्वज एक साथ गौरवशाली मुद्रा में आगे बढ़ते हुए एक विहंगम दृश्य। भारत की बेटियों की सदैव उन्नति के लिए कटिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख राष्ट्रीय एकता परेड में पहली बार ध्वजवाहक दस्ते की कमान संभाली है भारत की एक बेटी ने, जो है बीएसएफ की युवा अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लाकड़ा, जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में बीएसएफ कंटीजेंट की कमान संभाली थी। आज की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं 2021 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी एसपी वलय वैद्य आईपीएस गुजरात पुलिस। सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध राष्ट्र और जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ गर्व से आगे बढ़ता विश्व के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बीएसएफ का दस्ता कमान संभाले असिस्टेंट कमांडेंट मनीष कुमार। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के आयोजन की जिम्मेदारी निभाने वाला सीमा सुरक्षा बल। अब बिहार पुलिस तीव्रता से आगे बढ़ते हुए इस दस्ते की कमान संभाले हैं डीएसपी अमन। तत्पश्चात बिहार पुलिस के ठीक पीछे अरुणाचल प्रदेश पुलिस का दस्ता कमान संभाले है डीएसपी ताबा बिरोई। विश्व की सबसे बड़ी वर्दीधारी युवा शक्ति एनसीसी कैडेट्स का दस्ता नेतृत्व कर रही है सीनियर अंडर ऑफिसर नैना। सेवा की कटिबद्धता के ध्येय के साथ अब अग्रसर है राजस्थान पुलिस का दस्ता कमान संभाली है डीएसपी सुशील मान। और तीव्र गति से अग्रसर कर्नाटक पुलिस का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट मुपन्ना। कर्नाटक पुलिस के ठीक पीछे तीव्र गति से आगे बढ़ता दिल्ली पुलिस का दस्ता कमान संभाले एसीपी चंदन जीएस। और अब गर्व से सलामी मंच की ओर अग्रसर सीआईएसएफ का दस्ता कमान संभाले असिस्टेंट कमांडेंट दर्शक सिंह। सीआईएसएफ के बाद आगे बढ़ता दुनिया के सबसे बड़े सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ का दस्ता कमान संभाले है असिस्टेंट कमांडेंट पलविंदर सिंह। और अब हिमालय सी दृढ़ता लिए आगे बढ़ता आईटीबीपी का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट संदीप कलकल। और अब आईटीबीपी के ठीक पीछे तीव्र गति से अग्रसर गुजरात पुलिस का दस्ता कमान संभाली है डीएसपी ध्रुवल सुतारिया ने। गुजरात पुलिस के ठीक पीछे अब सलामी मंच के समीप पहुंचता तेलंगाना पुलिस का दस्ता कमान संभाले हैं असिस्टेंट कमांडेंट श्रीधर राजा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इस आदर्श के साथ अग्रसर है उत्तर प्रदेश पुलिस का दस्ता कमान संभाले डीएसपी धर्मेंद्र उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस के ठीक पीछे आगे बढ़ता मिजोरम पुलिस का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं डीएसपी लल्नुन बोइया राज्य। परेड की इस लय और गति को संवारने वाला बैंड, जिसमें बीएसएफ एवं गुजरात पुलिस का बैंड शामिल है।
मास्टर इंस्पेक्टर राधेश्याम बेरवा BSF। राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारतीय पुलिस बलों के सभी दस्ते आज उत्साह व उमंग से परिपूर्ण हैं। ये भारतीय पुलिस बलों के वही जवान हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए हमेशा जन जीवन के हितों की खातिर अपने आप को सबसे आगे रखते हैं। देश की एकता और अखंडता को सशक्त करने हेतु भारतीय पुलिस बलों के जवानों ने सदा ही अपनी प्रतिबद्धता प्रमाणित की। सीआरपीएफ डेयर डेविल राइडर्स द्वारा जंगल वॉरियर्स का फॉर्मेशन, संयुक्त प्रदर्शन, एक के पीछे एक अद्भुत संयुक्त प्रदर्शन का यहां पर हम दृश्यांकन कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय एकता दिवस के भव्य अवसर पर इस समय राष्ट्र ध्वज थामे BSF सीमा भवानी टीम कैप्टन इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के नेतृत्व में यूनिटी पोजीशन गर्व से आगे सीमा भवानी। और अब 7 मोटरसाइकिल पर 29 जाबाज का नेतृत्व करते BSF जाबाज टीम कैप्टन इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया राष्ट्रध्वज थामे अग्रसर एक चट्टान की तरह अडिग इरादों के साथ आगे बढ़ते सीमा प्रहरी। आज के सभी प्रदर्शनों में शौर्य है, संस्कृति है, भारतीय विरासत है और परंपराओं का समागम। देवियों तथा सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया जैसे योजनाओं के तहत पारंपरिक भारतीय खेलों का महत्व पुनर्जीवित हो उठा है। और अब राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष BSF के प्रशिक्षु सीमा प्रहरियों द्वारा भारतवर्ष की 4 प्राचीन युद्ध कलाओं का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अंतर्गत विश्व की प्राचीनतम युद्ध कलाओं में एक केरल राज्य का मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू, तमिलनाडु का प्राचीन मार्शल आर्ट सिलंबम और सदियों पहले आंध्र प्रदेश का आत्मरक्षा हेतु विकसित युद्ध कला कर्रा समूह तथा मुख्य रूप से बंगाल क्षेत्र का मार्शल आर्ट लाठी खेला शामिल है। प्रशिक्षक हैं इंस्पेक्टर गुरदयाल सिंह। BSF के इन प्रशिक्षुओं द्वारा भारतीय मार्शल आर्ट प्रदर्शन की श्रृंखला में सर्वप्रथम तमिलनाडु और केरल की प्राचीन युद्ध कलाओं का संगम सिलंबम और कलारीपयट्टू। वराहरूपं देववरीशं वरस्मितवदनम्
एकदन्तदर रक्षा कवचम् करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि। अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि। कुछ ना यहाँ था मगर जो यहाँ था वो हम है, संख्या के बिन संख्या पर जो यहाँ था वो हम है। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश तिमिरो जागर राम दूता तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कींचित जैसा। और अब महाराष्ट्र राज्य का 800 वर्ष प्राचीन पारंपरिक खेल मलखंब। इस खेल का संबंध भारतीय कुश्ती के साथ माना जाता है। मलखंब दो शब्दों के मेल से बना है, मल्ला यानी पहलवान और खंब यानी दंड। मलखंब के इस पारंपरिक भारतीय खेल को प्रस्तुत करने जा रहे हैं सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के बलिष्ठ जवान। तो प्रस्तुत है मलखंब। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा है जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा है देवा श्री। सीमाओं पर अपने
हमारे देश के वीरों का ये शानदार प्रदर्शन। समृद्ध संस्कृति की धरोहर हमारा भारत, जिसका पश्चिमी राज्य गुजरात अपनी भिन्न भिन्न कला संस्कृति के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आज गुजरात पुलिस की नारी शक्ति भारत की विविधता में एकता का संदेश लेकर प्रस्तुत कर रही है पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की भिन्न भिन्न नृत्य शैलियों का संगम, जिसे कोरियोग्राफ किया है पुलिस कांस्टेबल अश्विन झापड़िया ने। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस महापर्व पर अतुल्य भारत के सारांश को अपनी प्रस्तुति में समेटे गुजरात राज्य की 300 महिला पुलिस कार्मिका। सर्वप्रथम शुभ दिन आयो। चारों मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करा मेरे साथ मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जीरे आयो रे शुभ दिन सब कह रहे हैं आदियोगी भस्म वाली रस्म कर दो आदियोगी योग उत्सव रंग भर दो आदियोगी बज उठे ये मन सितारी जनन तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव गगन गए विजयी भव। भटकी है रोशनी है छटपटा रही रोशनी गगन गए विजय भव। विजयी भव। गन गगन गन गन हाथों में पिघलता है लोहा गगन गन ना उम्मीद न कोई लगी मेरा सब कुछ मेरा हौसला गगन गन हिम्मत है मेरी तकदीर मुझे कम न किसी से कियो मुझे कम न किसी से कियो तूने जाने पागलपन गन गगन गन
पहन मुकुट हिमालय का गंगा की कलकल से खिलता, पहन मुकुट हिमालय का गंगा की कलकल से खिलता। वीर शहीदों का ये भारत, वीर शहीदों का ये भारत बलिदानों के रूप से सजता। आविष्कारों की जननी महापुरुषों की ये याद है, स्वयं भगवान जन्मे यहाँ, स्वयं भगवान जन्मे यहाँ, स्वयं भगवान जन्मे यहाँ, इसका गौरव महान है। सरदार पटेल के शब्दों का एहसास है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत से सजी इस मिट्टी में कुछ तो खास है, इस मिट्टी में कुछ तो खास है। सब ऋतुएं वंदन करती, सब ऋतुएं वंदन करती, सतरंगी आसमान है, पग पग बदले बोली जो कोयल जैसी मिठास है। अलग अलग परिधान पुष्प से एक ही पराग है, भिन्न सांस्कार स्वर राग यहाँ, जनगण मन की एक ही आवाज है। मिट्टी की खुशबू सांसों में भारत नव निर्माण करे, विकसित भारत का सपना अब मिलकर साकार करे। है मिट्टी की सौगंध हम ये फुलवारी महकाएंगे, नजर न लगे इसे हम हद से गुजर जाएंगे। सरदार पटेल के शब्दों का एहसास है, सरदार पटेल के शब्दों का एहसास है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत से सजी इस मिट्टी में कुछ तो खास है, इस मिट्टी में कुछ तो खास है। हम चल पड़े हैं खुले गगन में नई सोच के साथ, पूरे सारे सपने अपने ले हाथों में हाथ। हम चल पड़े हैं खुले गगन में नई सोच के साथ, पूरे सारे सपने अपने ले हाथों में हाथ। एकता की शक्ति यहाँ हर रंग का मान है, सबका साथ सबका विकास अपनी नई पहचान है। सरदार पटेल के शब्दों का एहसास है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत से सजी इस मिट्टी में कुछ तो खास है, इस मिट्टी में कुछ तो खास है। ये मिट्टी संस्कृति के आगाज की है, इसके जैसी शान कहाँ, इसके जैसी शान कहाँ। अपना हड्डों हाथ समर्पित, सांसों का भंडार समर्पित, इस धरती के चरणों में हम सबका प्यार समर्पित। शीश झुकाकर वंदन करते, मेरे माथे की ये शान है। विश्व प्रेम का आधार इसी में, इस धरती का वरदान है, इस धरती का वरदान है। विश्व प्रेम का आधार इसी में, ये धरती का वरदान है। ये मिट्टी सबसे खास है, ये मिट्टी ही सबसे खास है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत से सजी ये मिट्टी ही सबसे खास है, ये मिट्टी ही सबसे खास है, ये मिट्टी ही सबसे खास है, ये मिट्टी ही सबसे खास है। इस खास मिट्टी की अप्रतिम संस्कृति को मिलाकर ये अद्भुत मेघधनुष रचाया एनसीसी के इस होनहार कैडेट्स ने। और अब राज्य स्तरीय पाइप बैंड प्रतियोगिता में 41 टीमों में से प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी बालक एवं बालिकाओं की बेहद हृदय स्पर्शी प्रस्तुति।
भारत के युवा भविष्य के समान इन बच्चों के द्वारा जो आदिवासी, भरथरी और पिछड़े वर्ग के केवल 11 से 17 साल की आयु के बच्चे हैं, जो कुछ वर्षों पूर्व भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। बनासकांठा के ये बच्चे इस काबिल बने जो आज दूसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और साथ ही में 2001 के भूकंप की वजह से नस्तिनाबूद हो चुके कच्छ भुज के स्वामीनारायण कन्या विद्या मंदिर की छात्राएं हैं, जिसमें बेटियों के लिए शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के कार्य हो रहे हैं। आइए सबसे पहले शक्ति सेवा केंद्र के बच्चों के द्वारा पाइप बैंड की प्रस्तुति अगुवाई कर रहे हैं डेंडोसिया मनीष। इन छोटे छोटे सैनिकों के बाद अब स्वामीनारायण विद्या मंदिर की ये बालिकाएं पाइप बैंड की कमान संभाली है बसानी हस्ती ने।
प्रस्तुति इन बालिकाओं के द्वारा। हमारी संस्कृति ही विश्व फलक पर हमारी पहचान है और इस भूमि के कण कण में भिन्न भिन्न कलाएं विद्यमान है। हमारी विकासशीलता के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति को सहज कर रखना ही हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से प्रस्तुत है तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार के प्रकाश की ओर पथ प्रदर्शित कर रही हमारी संस्कृति, जिसे विभिन्न नृत्य शैलियों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। दीपावली के इस पावन अवसर पर 16 राज्यों के 400 कलाकार, जिसे कोरियोग्राफ किया है कुशल दीक्षित ने। तो आइए मिलते हैं इन अद्भुत कलाकारों से। प्रस्तुति तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। कर है दीप ही सूरज चंदर है। दीप सत्य है दीप शिव है दीप ज्योति अति सुंदर है। अंधकार हर प्रकाश कर है दीप ही सूरज चंदर है। ज्योतिर्गमय
ज्योति यश विजयदायिनी दीप ज्योति शुभ का वरदान दीप ज्योति यश विजयदायिनी दीप ज्योति शुभ का वरदान ओ ज्ञान दीप ज्योति से झिलमिल अपना भारत राष्ट्र महान विविधता की वादी से यहाँ एकता का दीप जले विविधता की बाती से यहाँ एकता का दीप जले जय जय हो जन गण मन का सुजलाम सुफलाम फूले फले सुजलाम सुफलाम फूले फले सुजलाम सुफलाम फूले फले तम सोमा ऋषि कृषि का संगम तीरथ साथ चले यहाँ ज्ञान विज्ञान पंच प्राण और पंच शक्ति से राष्ट्र प्रथम का गौरव गान शोषित गरीब का घर सुविधा दीप से है रोशन सुविधा दीप से है रोशन ओ चलो जलाए दीप वहाँ पर दूर हो अंधियारा फौरन दूर हो अंधियारा फौरन प्रेम करुणा की ज्योत से प्रकाशमय हो हर एक मन कला और साहित्य के दीप से मंगलमय मानव जीवन 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 तम सोमा ज्योतिर्गमय
राष्ट्र हमारा है, भाषा भूषा भले अलग हो, एक हमारा नारा है। वंदे मातरम गूंजे हर घर, भारत राष्ट्र हमारा है, भारत राष्ट्र हमारा है। दीप बनेंगे हम स्वयं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। एक है मेरा एक आपका, यूं ही दीप से दीप जले। एक है मेरा एक आपका, यूं ही दीप से दीप जले। हर घर में हो रोज दिवाली, आओ हम सब साथ चले। आओ हम सब साथ चले। ज्योतिर्गमय, दीप बनेंगे हम स्वयं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। वसुधा एक कुटुंब है अपना, दिल से नहीं रहेंगे दूर। हे विश्व बंधुता समानता के सुर में मिले हमारा सुर, सुर में मिले हमारा सुर, सुर में मिले हमारा सुर। और सुदृढ़ भारत को आकार देने वाले आजाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओजस्वी वाणी और मूल्यवान विचारों को आत्मसात करने का ये युग पुरुष आज हमारे बीच ना होते हुए भी अपने विचारों से विद्यमान हैं, जिन्होंने अखंड राष्ट्र के रूप में हमें आज ये परिवेश प्रदान किया है। आइए उसी महामानव के इस रिकॉर्डेड संबोधन से अपने आप को धन्य करते हैं। जैसा एक कौमी मामला था,
वैसा एक पेचीदा मामला देशी रियासतों का था। जब सार्वभौम सत्ता हिंदुस्तान में से अपना बिस्तरा लपेट के चली और जब उसने ऐलान किया कि इधर पैरामाउंसी खत्म होती है, उस समय पर मुल्क में क्या होगा और मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में गिरे थे। लेकिन जो राजा महाराजाओं थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है। तो हिंदुस्तान का टुकड़ा होते हुए भी भारत आज एक बहुत बड़ा मुल्क है और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है। और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो रास्ता गांधी जी ने हमको बताया है उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी।